A very good morning all my dear students। ये वीडियो में हम आज देखेंगे हाउ टू रजिस्टर yourself on the virtual lab. Okay, see virtual lab we already have a virtual lab registration of college। तो अपने कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो वर्चुअल लैब पे, डिजिटल वर्चुअल लैब पे एज अ IIT बॉम्बे पर रजिस्टर्ड है। So you can take the benefits of the virtual lab which is already sanctioned by the our institute. Okay, so how to register on this virtual lab site and how to use the content of the virtual lab website. So let us start with step by step. So go to the Google and type virtual lab. So virtual lab पे आपने क्लिक करने के बाद जो आपको फर्स्ट साइट जहाँ पे जो दिख रही है यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, डोंट गो ऑन दिस, गो टू द सेकेंड वन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन दैट साइट। सो दिस इज vlabs.iitb.ac.in. okay, so this is the actual website of the virtual lab which is organized by the IIT Bombay. Okay, so it consists of different disciplines and domain: electronics and communication, computer science and engineering, electrical engineering. So your domain and your specialization is the computer science and engineering. So click on that computer science and engineering. Okay, so in that computer science and engineering there are lots of different subjects will be available: problem solving, artificial neural networks, pattern recognition. So your basic subject is computer programming. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है that is your subject, so you have to click on that. Then click on computer programming, so it will goes the control to the actual page of the computer programming lab. So it consists of different contents which is included in computer programming subject: numerical approximation, functions, advanced control flow, array, structure, basic control flow, pointers, recursions, expression evaluation. If you want to read the content of the expression evaluation, then click on the expression evaluation. देन यहाँ पे देखिए आपको जो भी उसका थेरी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव्स, मैनुअल, प्रोसीजर, फॉर द रीडिंग के लिए जो भी उसके रेफरेंसेस है वो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई देते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, देन क्लिक ऑन द जो आपको टैब्स ऊपर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप आपका एग्जीक्यूशन जो है देखिए a+b-c, अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, सो सी ऑन दैट सेकेंड पार्ट यू हैव टू सी द execution of the statement. So step by step, next and next, so it will shows the final result of the expression evaluation. And here step by step reasoning, तो आपको यहाँ पर जो step by step है वो भी आपके आंसर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं. So this is the code output, this is the evaluation flow of the expression, this is the initializer. You can initialize different values to ABCD. आपने अगर एडिट किया तो यहाँ पर आप आपके जो नंबर्स है वो भी आप चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। एंड देन अगेन, तो जो भी यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किए करने के बाद जो भी आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन है वो आपको दिखाई देता है। ओके, सो दैट विल एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द एनी स्टेटमेंट. सो इन दिस वे यू कैन select the content, particular subject content, and you can see the actual workflow of the any expressions. तो ऐसे ही बाकी भी सब्जेक्ट्स, बाकी का भी टॉपिक जो है वो आप ऐसे सर्च कर सकते हो. तो ये हो गए कि आपको कंटेंट कैसे रीड कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू लॉग इन, हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दिस वर्चुअल लैब साइट, वेबसाइट, और उसको लॉग इन कैसे करना है. एंड अगेन गो टू द मेन पेज ऑफ द IIT बॉम्बे. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये दिख रहा है. ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. क्लिक करने के बाद आपको जाना है आउटरीच के अंदर. आउटरीच, ओके, क्लिक ऑन दिस आउटरीच. आउटरीच पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ फीडबैक के अंदर. सी द फीडबैक फॉर्म. ओके, क्लिक ऑन दैट फीडबैक फॉर्म. फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इन हाउस फीडबैक. ये जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट वन,
in-house feedback. You have to click on in-house feedback. Then registered yourself on the, okay, you have to fill this form, registered form. सो यहाँ पे आपको IIT बॉम्बे का नोडल सेंटर सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे अपना जो नोडल सेंटर है दैट इज़ ऑन दी नंबर 50, दैट इज़ 50. तो 50 पे आपको दिख रहा है PR पोटे पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी. तो ये नोडल आपको सिलेक्ट करना है. सो क्लिक ऑन दैट. आ गया. देन आपको एज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है. सिलेक्ट द कोर्स, सिलेक्ट कोर्स योर्स BE. ओके, फर्स्ट ईयर हो लेकिन BE आपको सिलेक्ट करना है. देन डिसिप्लिन आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ओके, सो नॉन इंजीनियरिंग जहाँ पे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो सिलेक्ट करना है. सो दैट इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. Then select semester. So your semester is first. रोल नंबर, फैकल्टी ID जो आपका रोल नंबर है. देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, email ID, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कन्फर्म. सो यू हैव टू सेट योर पासवर्ड. ओके, तो सपोज अगर मैंने मेरा अगर यहाँ पे सपोज रोल नंबर डाला है 101. ओके, फर्स्ट नेम पल्लवी. देन so after filling this information you have to register. Click on register now. So you have been registered successfully. Then click on login. use your email ID, जो भी आप email ID यहाँ पे डालोगे, and click on the password. आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में डालना है फॉर द लॉगिन पर्पस. ओके, देन लॉगिन. आफ्टर फिलिंग द पासवर्ड यू हैव टू लॉगिन. After login, this page will be forwarded to your screen. तो जो आपका लॉगिन के बाद ये सबसे पहला पेज आपके सिस्टम पे आपको दिखेगा. दैट इज़ नोडल सेंटर 50. यू हैव टू सिलेक्ट द डेट, करंट सेमेस्टर यूज फर्स्ट सेमेस्टर, देन सिलेक्ट यूज़र, वर्कशॉप यूज़र. ओके, देन जो भी आपकी डिसिप्लिन है वो आपको सिलेक्ट करनी है. दैट इज़ इफ़ अगर आपकी डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. अगर आपकी डिसिप्लिन अलग है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. ओके, तो सेकंड इसमें मैं सपोज आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको सिलेक्ट करना है. देन यू हैव टू पुट अप द लैब नेम. अगर आपका लैब नेम CP है तो CP एंड एक्सपेरिमेंट. मैंने आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का बताया तो लैब नेम क्या हो गया आपका CP लैब, और एक्सपेरिमेंट नेम आपका क्या हो गया दैट इज़ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन. सो यू हैव टू क्लिक ऑन मीन्स जो भी लैब नेम या एक्सपेरिमेंट नेम है वो आपको पर्टिकुलरली, अगर आपके एक ही दिन में अगर चार एक्सपेरिमेंट हुए तो लैब नेम आपको 4 फील्ड में 4 रो में वो डालने हैं, एंड एक्सपेरिमेंट नेम भी उसके आपको 4 रो में डालने हैं. देन नीचे क्वेश्चनरीज. सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे ये फीडबैक जो है ये फिल करना है. यू हैव टू फिल दिस फीडबैक फॉर्म. जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, यस, नो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको क्लिक करना है. देन हाउ हेल्पफुल इज़ द सिस्टम आपको यहाँ पे भी मैंडेटरी है. सो यू हैव टू पुट अप दी योर रिमार्क एंड फाइनली submit your feedback to the IIT Bombay. If you not submit the feedback, then your workshop will not be considered, you will not be registered for that workshop. तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है. सो इट इज़ अ मैंडेटरी कि फर्स्ट जो आपके लैब्स में जो भी कंटेंट आपने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ईच एंड एवरी टाइम लॉग इन टू दिस साइट. आपका लॉगिन करना है और ये जो डेट वाइज जो भी आपके वर्कशॉप्स अरेंज होंगे उस डेट को आपको ये फीडबैक फिल करके सबमिट प्रेस करना है, तो ही आपका जो वर्कशॉप है वो कंसिडर होगा, अदरवाइज इट नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, सो दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर. सो आपको जो भी कंटेंट है वो लैब के अंदर देखने हैं. यू हैव टू फर्स्ट टाइम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है, एंड देन एवरी टाइम यू हैव टू लॉग इन. एंड वेरी लास्ट सबमिट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दी लॉग आउट ऑप्शन. तो लॉग आउट को प्रेस करिए और आपका जो अकाउंट है उसको उससे बाहर निकलिए. ओके, सो ईच एंड एवरी टाइम एक बार अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया है सो नेक्स्ट टाइम ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन दी
login. Okay, so thank you so much for watching this video. I think it is very helpful to you, and you have to use every time this um, virtual lab facility. You have to take the benefits of this. Okay, thank you so much.